हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सभी बड़ों को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो सबसे पहले मेरी तरफ से सभी नर्सेस को हैप्पी नर्सेस डे। तो चलो, मैं अभी कॉलेज जा रही हूँ, देखते हैं कॉलेज में कुछ प्रोग्राम होगा तो आप लोगों को बताऊँगी। तो चलो चलते हैं कॉलेज। को मौसम दिखाती हूँ। तो मौसम की बात करें तो देहरादून का मौसम और यहाँ की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है गाइस, कुछ भी हो सकता है। और ऐसा हो रखा है कि धुंध छा रखी है पूरी, मतलब बादल लगे हैं, बारिश कभी भी आ सकती है, कुछ पता नहीं है। आजकल तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, शाम के टाइम पे हमेशा बारिश आ रही है, हमेशा। मौसम मतलब ठीक है, बट ऐसे मौसम जो अभी हो रहा है ना, उसमें तो उमस हो रही है सबसे ज़्यादा। बाकी देखते हैं, शाम तक बारिश तो आ ही जाएगी। हैप्पी नर्सेस डे आप सब लोगों को। जो भी ब्लॉग देख रहे हैं, आज हमारे कॉलेज में नर्स डे का प्रोग्राम हो रहा है, जो कि इस प्रकार है। इस प्रकार डेकोरेशन करा हुआ है कुछ, और बाकी बच्चे नर्सेज आ रहे हैं। वो हमारी नाइट एंगल है। The bone of Good morning to our esteemed guests, respected faculty, dedicated students, and beloved nursing professionals. Today, I, Aman Thomas, and I now Tanzeen. will be your host for today's event. 12th May, which has been celebrated as Nurses Day, a day dedicated to the heart and soul of healthcare. And to unfold this year's theme for Nurses Day, we would like to invite Mrs. Shipra ma'am on stage. Respected Principal Ma'am, faculty members and dear students, first of all, Happy Nurses Day to all amazing nurses. So, theme पता है किसी को 2025 का? Very good. Economic value nurses bring to healthcare system and society at large. Recognition of value. Nurses are not only healthcare providers but also key contributors to our nation's economy through disease prevention, health promotion, and cost-effective care. Investment in nursing. Advocate for increased funding in nursing education, staffing, leadership, and fair wages to strengthen healthcare system globally. Policy influences. Encourage nurses to engage in policy making to ensure that their voices shape health and economic strategies. Global health impact. Recognize nurses' contribution during health crises like pandemic and their role in achieving universal health coverage. Thank you. Thank you, Shikha, for unfolding the theme. On this day, we gather to honor the incredible contribution of nurses around the world to empowering lives, one patient at a time. We are honored to have among us our distinguished guests, respected Chairman Sir, Administrative Director Sir, Principal Ma'am, Managing Director Sir, and Academic Director Sir, and our beloved nursing teachers. Thank you for gracing us with your presence. Let us begin this auspicious event with the lamp lighting ceremony, a symbol of enlightenment and selfless service and tribute to future nurses, for which कॉपीराइट के लिए क्यों करा है लोगों ने? कॉपीराइट आएगा इसमें। National Nurses Day. I'm deeply honored to stand before you as a nursing student. Nursing प्यारे लग रहे हैं सब ना, स्मार्ट लग रहे हैं भाई।
जय हिंद एवरीवन। हैप्पी नर्सेस डे। सेम टू यू मैम। बोलो सेम टू यू मैम। ओके, तो जब तक मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, आप में से कोई भी अभी कुछ एक्सटेम्पोर, कोई पोएम, कोई स्पीच कुछ बोलना चाहे तो जस्ट प्रिपेयर मीनवाइल, ठीक है? क्योंकि अभी 2-3 इवेंट हुए हैं, हमारा प्रोग्राम इट केम टू एन एंड, ठीक है? तो आप कुछ, कोई आप में से कुछ बोलना चाहता है, कोई पोएम है, कोई स्पीच है, एनी थॉट, एनीथिंग यू वांट टू से और शेयर। ओके, सो टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग नर्सेस डे। So every year on 12th May we celebrate Nurses Day. So why only on 12th May? Why? कोई एक बोलो। अब कोई एक बोलेगा। Yes. Yes. Because it is Florence Nightingale's birth anniversary और birthday. ठीक है? तो Nurses Day जितने भी हमारे अभी एट प्रेजेंट नर्सेज हैं, क्लिनिकल में हैं, कॉलेज में हैं, अकेडमिक में हैं, सीनियर्स हैं और आप लोग हो। So, can any one of you tell that why it is required to celebrate Nurses Day? क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से मनाना ज़रूरी है? Why? What is the significance of Nurses Day? Just think about it. What is the significance of celebrating Nurses Day? अच्छा, what is the theme? Our nurses? What does this mean? This means कि आप लोग जितने यहाँ पे बैठे हो वो सब क्या हो? Future. Our future. मैं चाहती थी सारी बच्चे यहाँ पे हों। हमारे फर्स्ट सेम बीएससी फर्स्ट सेम यहाँ नहीं है, थर्ड सेम यहाँ नहीं है, फोर्थ सेम यहाँ नहीं है, जस्ट बिकॉज दे आर हैविंग देयर अपकमिंग एग्जामिनेशंस, फाइनल एग्जाम। तो कितने बच्चे यहाँ पे हैं? जीएनएम सेकंड ईयर, जीएनएम थर्ड ईयर, एएनएम दोनों बैचेस? बीएससी 6 सेम, यस, बीएससी 6 सेम। ओके, तो कोई भी बताओ जरा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? व्हाई आर वी गैदर्ड हियर टुडे? व्हाई आर वी सेलिब्रेटिंग दिस नर्सेस डे? एनीवन फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम द स्टूडेंट्स? Just think about it. कुछ भी बोलो, there is nothing right or wrong. Say something. बहुत ही कम समय में आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, very well. So congratulations to the teachers, to the senior most batch जिन्होंने सब ऑर्गेनाइज किया, very good. So they all deserve a round of applause. बहुत ही कम समय में आप लोगों ने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की. So अभी आया किसी को जवाब? भाई आगे करके.
Yes, very good. और कोई बताएगा? It's just sharing your own thoughts. कुछ भी सही गलत नहीं है कि आप जो ये चीज़ बोलोगे तो सही होगा. Anything which comes to your mind. Why are we celebrating Nurses Day? कोई ज़रूरत है Nurses Day celebrate करने की? ज़रूरत है? क्यों? To acknowledge the efforts, to acknowledge the dedication. हेल्थ केयर प्रोफेशन में मेजर वर्कफोर्स कौन है? नर्सेज. नर्सेज आर द मेजर वर्कफोर्स इन हेल्थ केयर प्रोफेशन एंड इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू एक्नॉलेज द डेडिकेशन, द सर्विसेज गिवन बाय नर्सेज. चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे कोई इमरजेंसी हो या पैंडमिक हो, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, नर्सेज को अपनी ड्यूटी पे प्रेजेंट रहना होता है एंड दे डू देयर वर्क विद लॉट. आईएनसी ने एक वर्चुअल मीटिंग कंडक्ट की थी टू डिस्क्राइब द रोल्स ऑफ नर्सेज कि क्या नर्सेज को भी करना है. नो स्टूडेंट नर्स विल गो ऑन छुट्टी, नो नर्स विल गो ऑन लीव. वी ऑल हैव टू बी प्रेजेंट फॉर, ठीक है, फॉर आवर सर्विसेज. बट ठीक है, थैंकफुली दिस ऑल केम टू एन एंड. तो समझ रहे हो आप लोग कि नर्सेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है. आप लोगों को ये अंडरस्टैंड करना कि आज आप जो कर रहे हो, पढ़ रहे हो, यू विल बी फ्यूचर नर्सेज. ओके, नाउ कमिंग बैक टू द थीम. थीम क्या है? आर नर्सेज आर फ्यूचर. जो कि मेन हमें जो हम रिवॉल्व करते हैं इस थीम के अराउंड, जो मेन समझ में आता है वो है इन्वेस्टिंग इन योर ओन हेल्थ एंड वेलबींग. अपनी हेल्थ और अपनी वेलबींग पे ध्यान देना. अभी गूगल पे, इंटरनेट पे, एआई पे जो भी निकल के आए सामने वो अलग चीज़ है, पर प्रैक्टिकल उसमें देखो कि कैसे आप अपनी हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान दोगे. हाउ? बताओ कैसे अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पे कैसे ध्यान देना है हमें. हॉबीज हैं सबकी? सबकी हॉबीज हैं? रेज योर हैंड्स. अभी इतनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस हुई है, उसके बाद तो एटलीस्ट आप सब एनर्जी, ये वाली स्पीच मेरी स्टार्टिंग में होनी चाहिए थी, सो दैट वो एनर्जी आपकी बनी रहती. बताओ किस किसकी हॉबीज है? जस्ट रेज योर हैंड्स. हॉबी कैन बी एनीथिंग विच वी एंजॉय डूइंग, है ना. जस्ट रेज योर हैंड्स ना. So she's not ready to explain, but she has made it very beautifully, so it's displayed now. सही है दुनिया मेरी हमदम, वो आसमां मिला ज़मीं को मेरी, आगे आगे हुए हैं तेरे नाम पे मेरी ज़िंदगी लिखे हमदम. सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, सीखा मैंने जीना मेरे हमदम. ना सीखा कभी जीना जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम. बताना चाहिए कि जो हम सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को, तो सबसे बड़ा सेलिब्रेट ये है कि जैसे जहाँ से नर्सेस, जहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, उनका काम क्या था? हेल्प करना. और हमारा काम क्या है? सेलिब्रेट करना, है ना. तो मेरा ये मेरी थॉट है कि हम सेलिब्रेट के साथ साथ एक दूसरे की हेल्प भी करें हर चीज़ में. अगर जैसे कि जो मेरे साथ वाले जो मेरे साथ ड्यूटी में रहते हैं, हम जानते हैं कि जब किसी को प्रॉब्लम तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन करके वहाँ पे हेल्प करते हैं. तो ये हमने कभी किसी को बताया नहीं. तो मेरा एक ये कहना है कि आने वाला जो टाइम है वो आप जानते हो कि जैसे हालात इंडिया के बने हुए हैं, तो वो हमारे पास पैसों का, और जो मिडिल क्लास है खासकर, वो उनके पास कोई सोर्स नहीं है कमाने के लिए और नौकरियाँ जा रही हैं. तो उनके लिए कुछ हम प्रोवाइड करें चीज़ें कि राशन के लिए या किसी और चीज़ के लिए. तो ये मेरी एक थॉट है कि नर्स का मेन काम क्या है? हेल्प करना. सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाना नहीं है, ड्यूटी के साथ साथ हम एक दूसरे की हेल्प भी करें. सो थैंक यू. एक सॉन्ग है जो मैं हमेशा अपने जो चर्च में मैं हमेशा गाता हूँ. वो तो पंजाबी में है, अगर समझ आए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं उसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ. वो ऐसा है कि जंग जब लड़ती है, जब जंग चल रही होती है तब की बात है, क्योंकि वो लड़ रहे हैं हथियारों के साथ. तो हमारी लड़ाई तो होती है, हमारा फेथ होता है कि हमारा विश्वास है कि वो परमेश्वर, वो खुदा, वो लड़ेगा लड़ाई हमारी तरफ से. और एक ये हम सबका भी कई बार रहता है कि नहीं कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दे तो वो देख रहा है. तो उस बेस पे मैं एक सॉन्ग यहाँ पे गाना चाहता हूँ. हर दुश्मन नसदा, जिना दिला विच बसदा यहोवा,
ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 ਜੰਗ ਜੀਨਾ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਜੰਗ ਜੀਨਾ ਦੀ ਲੜਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ دیਵਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਮਦਦ ਜੀਨਾ ਲਈ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਮਦਦ ਜੀਨਾ ਲਈ ਕਰਦਾ ਯਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ 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 मैंने बोला कि लास्ट टाइम जो गाया थे वो गाना है सो एक छोटी सी लाइन है सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे बिना साडा कल्ले आजी नहीं हो लगना साडा कल्ले आजी नहीं हो लगना सजना तेरे बिना सजना तेरे ताली बजा। बिना सजना तेरे बिना वैसे वाली विचार से अलग है। हिंदी अनुवाद तो बताएंगे। लगे गमवीद ते हरा आही जत वे दिखदा गाइस अभी हमारी छुट्टी हो चुकी है और कल से हमारी छुट्टी है। कैसा लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है। तुम 2 हफ्ते की छुट्टी मार के 1 हफ्ते की फिर मिल गई। 1 हफ्ते की आप नहीं। जानते हो कितनी खुशी होगी मुझे। चलो ना यहाँ से यार। तो जब तक हमारे ग्रुप में मैसेज नहीं आता तब तक हमारी छुट्टी है दोस्तों। तो उसके बाद हमारी ड्यूटी लगेगी। तो दोस्तों कॉलेज से मैं आ गई थी, 4:30 बजे तक पहुंचती हूँ रूम पे। और रूम पे आने के बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं गई अपनी दवाई लेने नकरौंदा के अंदर, जो कि वहीं मिलती है या तो मुझे वहीं हॉस्पिटल में मिलती है। तो मैं हॉस्पिटल से नहीं लाई थी, जब मैं अभी रूटीन चेकअप के लिए गई थी तो उस टाइम नहीं लाई थी। उसके बाद वहाँ से आने के बाद मैंने खाना खुना बनाया, अभी खाना खुना खाया, जस्ट पूजा वगैरह की और अपनी मम्मी लोगों से बात करी। तो सबसे खुशी की बात यह है कि कल से मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी है। क्योंकि छुट्टी इसलिए है, प्रिपरेशन लीव दी है क्योंकि हमारी लग रही है क्लिनिकल ड्यूटीज़ लगेगी अभी। तो उस चीज़ के लिए हमें मतलब मैम लोग जो रोस्टर बनाएंगे हमारा ड्यूटी का कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगेगी, कौन से टाइम पे लगेगी, तो उसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए जब तक वो चीज़ें बनती है तब तक हमें कुछ टाइम की छुट्टी दे रखी है, मतलब अगले मंडे तक मे बी कि बन जाए। अगले मंडे तक की हमें छुट्टी दी है। आज मंडे है, आज से लगा लो अगले मंडे तक, मतलब 1 हफ्ता हो रहा है पूरा अगले मंडे तक। तो मैं अभी मम्मी से यही बात कर रही थी कि मेरी 1 हफ्ते की छुट्टी है, मैं क्या करूँ बोल के, घर आऊँ या यहीं रहूँ। तो मम्मी ने बोला अभी बताती हूँ तुझे, तो जो भी होगा मम्मी लोग बताएंगे या जैसा भी होगा। अगर घर जाना होगा तो मैं घर जाऊँगी, यहीं रहना होगा तो यहीं रहूँगी इस रूम पे। मैं तो पक चुकी हूँ और काफ़ी मतलब बहुत ये 2-4 दिन से ये भारत पाकिस्तान का जो भी ये हो रहा था ना, युद्ध वगैरह जो भी, इससे जो दिमाग ख़राब हुआ था उससे भी, और बाकी यहाँ रूम पे रह के मेरा जो दिमाग ख़राब हो रहा है ना, मैं क्या बताऊँ। क्योंकि न्यूज़ में हर जगह वही हो रहा था, उसको देख के मैं एकदम वही हो रहा है अभी तक भी। मतलब न्यूज़ जो भी है, न्यूज़ वही चल रही है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। फ़ोन में भी कुछ भी देखो तो वही, या रील देखो वही, वीडियोज़ देखो, कुछ भी देखो वही। तो रूम में तो होता ही है दिमाग ख़राब अकेले। तो इसलिए सोच रही हूँ मैं 2-3 दिन घर चली जाऊँ अगर। तो आजकल गाँव में भी मतलब काफ़ल वगैरह पकने स्टार्ट हो गए हैं और मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी जाऊँ।
तो देखते हैं कैसा भी होता है। अगर घर जाने को है तो मैं कल सुबह ही, मतलब कल ट्यूसडे है 13 तारीख, हाँ 13 आज 12 है, नर्सिंग डे का जो भी था वो आपने देख लिया होगा अभी तक के ब्लॉग में। तो कल 13 तारीख है, तो मैं अगर जाने का होगा तो कल घर चली जाऊँगी, वरना यहीं रहूँगी। फिर यहाँ क्या करूँ मैं इस रूम में, मुझे भी नहीं पता कितना सोऊँ कितना बैठूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। पढ़ाई तो क्या ही होगी, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ कभी कभार जब मेरा मन करे, वरना मेरा बैग जैसे मैं कॉलेज चलाती हूँ वैसा ही रहता है। बस उसमें से टिफ़िन वाला चेन खुलती है, टिफ़िन निकलते हैं, फिर टिफ़िन पैक होता है, फिर सुबह वही लेके कॉलेज जाती हूँ। तो देखते हैं आगे आगे जो भी होगा आपको आगे के ब्लॉग में मेरा पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें ना, आप लोग भूल जाते हो। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय, राधे राधे।